Okay, so we will continue with the same topic that we left in the last class, so which is common base biasing for amplifier. Before moving to that, we have given few homeworks, so I like to discuss that first. Basically, the today's class will be around these three questions only. So the first question is why BJT? So those of you who are willing to answer, please unmute yourself and then give your answer. Yeah, sure. Go ahead. So BJT actually has the power to amplify the current more better than the CMOS. Also, it has the exponential relation with the current. It increases the current, the output current, collector current exponentially. That's why it is more suitable in the modern electronics rather than So CMOS. you mean BJT has more current driving capability, right? Yes, sir. Okay, that is one of the point. Anyone else? 14 students are there, only one have replied. किसी और ने ट्राई करा, जानने की कोशिश करी? Anyone? दो और लोगों ने ज्वाइन करा अभी। आप में से कोई बताएं बीजेटी की इंपॉर्टेंस क्या है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में? अगर थोड़ा भी पता है तो आप गेस कर सकते हैं, एटलीस्ट ऐसे चुप रहने से आप कुछ सीखेंगे नहीं। और अगर आप होमवर्क ट्राई नहीं कर रहे तो फिर इट विल नॉट गोइंग टू वर्क। एक आंसर आया है सीमॉस मेनली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, जबकि वीजीटी एनालॉग एम्पलीफायर आरएफ और पावर एप्लीकेशंस में भी इम्पोर्टेंट है। और नॉट नेसेसरीली, बीजेटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होता है, नॉट ओनली सीमॉस। When you will start learning CMOS. So before CMOS, we have TTL logic and ECL logic. So many of them were based on BJTs. So not only CMOS are the fundamentals for digital electronics. There are applications where in digital electronics we use MOSFET and BJT as well. It is used for better gain. एक्चुअली बेटर गेन ना कह के आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि इसका ट्रांस कंडक्टेंस अच्छा होता है ना? हमने पढ़ा है किसी भी एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, जी एम आर आउट। सो देर आर टू quantities involved in the expression for the gain, that is one gm and the other is r out. So r out depends, sometime in case of normal rc amplifier we have rc at the collector side in case of bjts. So the second thing that can be increased or decreased to adjust the gain is GM, which is transconductance. So BJT generally give good transconductance. जैसा क्लास में किसी ने पूछा भी था चैट पर कि that is GM is equals to del IC over del VBE. So basically which is equals to IC over VT. So you know the in the, let me write it for you. ये शायद मैंने कल भी बताया था, है ना, IC over VT, है ना? IC is generally is in the order of milliamperes and VT is in millivolts. So this is going to be high in case of BJT in compared to the CMOS, I mean MOSFETs. Anything else? Okay. BJTs are used because they provide higher gain, better linearity. Yeah, that's a good point. Better linearity. यही चीज़ मैं देखना चाह रहा था।
ये एक अच्छा पॉइंट है, बेटर linearity, lower noise and excellent performance, noise भी लो होता है सही, and in analog and high frequency circuits. Khushi, can you elaborate what do you mean by high frequency circuits? कुछ एग्जांपल दे सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स का? चलिए मैं बताता हूँ. बेसिकली Sir, हाई, RF, yes, RF. yes, yes, RF is correct. We have RF or microwave applications. Sometimes we have power amplifications. So there, these kind of devices are involved. Mm, RF, microwave applications, power amplifier applications, yes, and all those circuits which requires good linearity, there we use BJT. So these are some of the point why do we need BJT in this current world, because when we go into a high frequency range, there is a lot of constraint involved with respect to the MOSFETs that to be used in high frequency. So BJT is one of the alternative for that in case of high frequency applications. So that is a good point. Okay, so first question is done. Second is IV characteristic. So किसने try करा IV characteristic? IV के दो पार्ट. पहला जो हमने कहा था करने के लिए IC VCE. कितने लोगों ने करा? हैंड रेज करें. LT स्पाइस में करा हो. I can see very less participation of the students here. अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न लॉट फ्रॉम इट. जस्ट आप एक मूवी की तरह इसे देख रहे हैं और मे बी कुछ दिन याद रखें फिर आप भूल जाएंगे अगर आप नहीं करेंगे तो. The only purpose of this particular classes is to teach you the spice and hands on. अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न इट. किसी ने नहीं करा? चलिए मैं सर्किट बनाता हूँ ICVC के लिए. मैंने कल दिखाया भी था एक कैरेक्टरिस्टिक ICVC का. या दिस वन. यू कैन सी फॉर IV कैरेक्टरिस्टिक सर्किट गिवन है आपके पास और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है. IB को डिफरेंट डिफरेंट IB के लिए IB4 IB5 3 2 1 you have to plot IC versus VCE. So I am going to plot this and then we will try to identify the saturation region and cutoff region. Okay, so let's go into that. Let's suppose we are giving 12 volt at VCC and then I'll give a current source here and I'll vary this current source to plot IC versus VCE with respect to the different values of IB. So let me share my display screen. Can someone confirm if LT spice screen is visible?
Please unmute yourself and then confirm. It is visible, sir. Okay, so let me do first ICVEC characters. So first of all, I like to pick a new transistor, NPN. Let me do the wiring. सभी के पास है LT स्पाइस? अगर है तो आप साथ में कर भी सकते हैं. This is reference ground, and we have to give a VCC. Let me keep it 12 volt. ट्रांजिस्टर का मॉडल सेलेक्ट करना होगा अभी, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे. जब राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा पिक न्यू ट्रांजिस्टर का. यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, आइदर 2N2222 और 2N3904. NXP मैन्युफैक्चरर का है. आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर के सारे पैरामीटर्स गिवन होंगे आपको. लाइक सेचुरेशन करंट की वैल्यू गिवन है 1 is to 10 to the power minus 14 amperes, then VAF, then beta, then all those parameters. So let me choose this. Let me bias the base voltage as well. This is VB. Let me keep it. Okay, let me ask you a question. What is the value I should choose for base voltage source that I have given? I don't want your reaction. I'm asking, okay, what is the value I should choose for base voltage to bias my transistor in forward bias region, or I should say active mode of operation. कल बताया था मैंने. We are going to use the transistor, this NPN transistor, in forward base emitter in forward active and base collector in reverse mode of operation. So उसके लिए हमें बेस पर कौन सा वोल्टेज देना पड़ेगा, कितना वोल्टेज देना पड़ेगा in case of silicon. Yeah, right, Kushi Gupta 0.7. Just because this is VB and this is VE, और अगर VE का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, सो अगर मुझे इसे फॉरवर्ड बायस में रखना है तो VE शुड बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट. तो VB माइनस VE शुड बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट. VE हमारा 0 पोटेंशियल पर है इन दिस केस, सो VB शुड बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट. Okay, so I'll choose 0.7 in my case. Okay, and then I'll do dot op. So this is the current flowing in this transistor, collector current, and you can see this is emitter current, and you can observe IC plus IB is equals to IE. The equation that we uh, learned in the last class can be verified here, that the collector current plus the base current should be equals to the emitter current. Okay, so let me plot now IC versus VBE. I'll do the DC sweeping for voltage source at the collector, which is VCC. So VCC can be swept from point, or let's suppose from 0. I'll sweep it's from 0 to 1.2 in the range of 0.1. Okay, and let me do the DC sweeping. To remove this sharpness, what I'll do, I'll take
range to be more lower, so it will be smoother. Then now you can see this is the collector current. uh, जैसा हमने थ्योरी में देखा था कि ऐसा कुछ आ रहा था, है ना। यू कैन सी कि फॉर ए फिक्स्ड आई बी कलेक्टर करंट कैसा आ रहा था, इट्स लाइक दिस, है ना। Initially it is rising and then it is constant, and this constant region is active region, and this is the saturation region, and where the current starts to be appear, below that is the cutoff region. So you can see in this plot, this is the saturation region, and this is the forward active region, where the transistor is properly biased in active mode of operation, and this is where the current is very low or no current is appearing. This is the cutoff region. Okay, now one the next target is for me is to uh, plot this kind of characteristic, where for different IB we have this kind of plot. So let me go to that, साथ में कर भी देंगे आप लोग। हेलो, is there anyone of you who is simultaneously working on the LT Spice, कि जो भी कर रहे हैं अगर उन्हें कोई परेशानी आए तो बीच में मुझे रोक करके कुछ पूछ सकते हैं अगर पूछना हो तो। सर आपने स्लोप कैसे स्मूथ करा था? रिपीट। सर आपने शार्पनेस कैसे रिमूव करी थी? शार्पनेस के लिए मैंने बस इस रेंज को बढ़ा दिया, इस रेंज को। what I did is initially I took the range starting from 0 to 1.2 in a step of 0.1, so फिर मैंने स्टेप साइज को बढ़ा के आई मीन कम करके 0.01 कर दिया। इनिशियली स्टेप साइज ज़्यादा था, तो सर्किट एल टी स्पाइस जब वो इंटरपोलेशन से कैलकुलेट कर रहा होता है तो वहाँ पर शार्पनेस दिख रहा था। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। दिस वाज समथिंग इन केस ऑफ 0.1 step size, and when I reduce the step size it became smoother. Fine. यस सर। Okay, so let me change the circuit and try to plot for different IB. So I will take a current source. Can anyone tell कि मुझे current direction ये रखना चाहिए या ये रखना चाहिए? ये सही है? कोई बताएगा? हेलो। सर नहीं, ऊपर होना चाहिए एरो। ओके, ये डायरेक्शन कब सही होता, किस केस में? सर पीएनपी के केस में। यस, इन केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर ये डायरेक्शन सही होता है, क्योंकि उस केस में मैंने बताया था। लेट मी रिकॉल इट फॉर यू। यहाँ मैंने बताया था कि ये करंट आ रही है आईसी और ये आ रही है आईबी, और टोटल एमीटर करंट से अकॉर्डिंग टू दिस एरो आउटवर्ड की तरफ फ्लो कर रही है, विच इज़ आई सी प्लस आई बी इज इक्वल्स टू आई। एंड मैंने ये भी कहा था कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ द पी एन पी, बोथ द ट्रांजिस्टर, आइदर एन पी एन और पी एन पी। सो एमीटर से जब करंट यहाँ आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एरो और सी की तरफ जाएगा, तो वो बी की तरफ भी जाएगा, है ना। टू मेक श्योर कि मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कि इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इन केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बेस करंट ऐसा होगा, कलेक्टर करंट ऐसा होगा, एंड एमिटर करंट ऐसा होगा। ओके, सो लेट मी कम टू दैट सर्किट।
अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसे भी वेरी करना है, इस आई बी करंट को। दिस इज़ माई बेस करंट। अब कल मैंने बताया था कि बेस करंट जनरली माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होता है, और जो कलेक्टर करंट है और एमिटर करंट दे आर जनरली इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स। सो मैं इसको वेरी करूँगा। सो मैं एक नया सोर्स ले लूँगा, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं सेकंड सोर्स, और उसका नाम है सेकंड सोर्स का आई बी। सो आई राइट आई बी, जिसके स्टार्ट वैल्यू मैं दे देता हूँ 1 माइक्रो, and I'll verify up to 12 micro, and let's see in the range of or step size 1 micrometers. So ये है हमारा DC कमांड। अगर किसी को लिखना है तो देख सकते हैं, ये DC कमांड है इस करंट सोर्स के लिए। और ये हमारा VC है, या VC भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईच एमिटर जो है हमारा ऑलरेडी जीरो पोटेंशियल पर है, तो दिस इज सेम एज VCC और VCE। ट्रांजिस्टर मॉडल सिलेक्टेड है, जस्ट आई प्लॉट दिस। ओके, डमी वैल्यू हमें देना पड़ेगा आईपी के लिए। सो लेट मी चूज फॉर द मोमेंट लाइक 1 माइक्रो। ओके, नाउ यू कैन सी व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, हमें दिख रहा है। कैन यू वैलिडेट योर थ्योरी विद द एप्लीकेशंस? कैसा दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक हमारा आईसी वर्सेस वीसीई? हेलो? आई थिंक मेरी स्क्रीन दिख रही है, फिर लोग बोल क्यों नहीं रहे? आर यू एबल टू फॉलो? एटलीस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन कुछ तो कहें, हाँ या ना। So can you please repeat the question? देयर इज नथिंग लाइक क्वेश्चन, मैं बस पूछ रहा हूँ कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा, क्या यहाँ पे आपने उसको देखा कि प्रैक्टिकली वो वैलिडेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? Yes sir, हो रहा है. हो रहा है, ओके। सो इस प्लॉट में आप देख कर बता सकते हैं कि लाइक फॉर ग्रीन एंड देन ब्लू रेड, तो उसमें किसके लिए आई भी ज़्यादा होगा, कौन से प्लॉट के लिए? बॉटम मोस्ट के लिए या टॉप मोस्ट के लिए? So topmost. वाई? So because दिख रहा है कि जो स्लोप है वो धीरे धीरे उठता जा रहा है, कलर भी चेंज होता जा रहा है. बट स्लोप से आई भी का क्या रिलेशन है? स्लोप से नो सर, एक्चुअली जो आईसी है, वाई एक्सेस, उसमें हमें दिख रहा है कि जो येलो कलर का टॉप मोस्ट स्लोप है उसमें वो अराउंड है 3.6 मिली एम्पियर के. तो हमें दिख रहा है कि कलेक्टर करंट ज़्यादा है, तो डायरेक्टली रेफरेंस हम निकाल सकते हैं कि इस टाइम पे बेस करंट भी ज़्यादा होगा. ओके, सो इक्वेशन क्या मैंने बताया अभी कि आई ई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। सो यू मीन टू से व्हेन आई सी इज टेंड्स टू राइज, द आई बी शुड प्रोपोर्शनली राइज, राइट? यस सर. ओके, लेट मी सी। ऐसा हो रहा है? हो रहा है ना ऐसा? यस सर. हाँ, तो थ्योरी और एप्लीकेशन आप देखिए कैसे वैलिडेट कर पा रहे हैं। सो एल टी स्पाइस टूल्स में हमें ये आसानी होती है कि वी कैन verify each of the intuitions we are having in our mind. I had a question that what is the value of IB, or what is the impact is having on IB when we are getting different plots. So I just what I did, I
did a right click. I went to notes and annotations, and we have an option in the LT Spice to annotate each and every steps that we are having. So through this plot, we studied three things. We studied how to do multiple DC commands simultaneously. हमने एक बार में दो DC कमांड चलाया है. हमने VCC को भी वेरी करा है, you mean this, and हमने at the same moment हमने बेस करंट को भी वेरी करा है, right? Yes, sir. तो हमने देखा लास्ट टाइम हमने जो इंटर्नशिप करी थी उसमें हमने देखा था कि एक डीसी कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं. अब इस टाइम हमने दो डीसी कमांड यूज़ करा, और उस दो डीसी कमांड को यूज़ करके हमने एक ऐसा प्लॉट जनरेट करा जो यहाँ दिख रहा है. अब हमें यहाँ पर इंट्यूशन आ रहा था कि वी हैव टू वेरीफाई कि विच इज़ हैविंग मोर आई बी, द टॉप ग्राफ और द बॉटम ग्राफ. The one way is to go through your theory and try to find out what should be there, what you are expecting, and then you have to verify either you are getting the same thing in your simulation or not. So for that, what I did, we have an option in LTSpice. I went to the option notes and annotations, and I have annotated each and every steps. So it is showing that we are having 12 iterations in this plot, and out of those 12, the bottom one is for IB equals to 1 microamps, and then going forward up to IB equals to 12 microamps. So this is the IC VCE characteristic, where this region denotes the saturation region, and then this is the cutoff region where we have a very low leakage current or no current. That is the cutoff region where transistor remains off, and then we have the this plot. Okay. Yes, sir. So this is also called as the output characteristic of the NPN transistor. Why output? You can see I have taken IC, the collector current, and then VCE. Generally, we take the output at the collector side. That is why I am calling it, sometimes we can say, output characteristic or IC VCE characteristic of a NPN transistor. So, and now next thing for you or for you guys is to plot the IC VCE characteristic of the PNP transistor. ये आपको होमवर्क रहेगा. Okay. एक चीज़ और मैं इस प्लॉट में बताना चाहूँगा कि यू कैन सी इज़ इट एक्चुअली फ्लैट और सम स्लोप इज़ इन्वॉल्व. अगर मैं इसे जूम करूँ किसी भी एक प्लॉट को, यू कैन सी कि ये एक्चुअली पूरा फ्लैट नहीं होता है, सम स्लोप इज़ देयर ना. आइडियली तो ये फ्लैट होना चाहिए था, बट कुछ स्लोप इन्वॉल्व है यहाँ पे, है ना. तो और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, लेट मी राइट दैट. होता है क्या है कि इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आईबी के लिए जब आप प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप, ये क्या है, आईसी, और ये क्या है, वीसीई. सो इस स्लोप से जब आप इस स्लोप को आगे एक्सट्रापोलेट करते हैं हम बैक साइड में, तो एक कॉन्सेप्ट आता है अर्ली वोल्टेज का, विच इज़ जनरली द सेकंड ऑर्डर इफेक्ट ऑफ द बीजेटी. सो वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे प्लॉट जाके एक पॉइंट पे मीट करते हैं, ये सारे प्लॉट. तो वो जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे जो वैल्यू आती है वीसीई की, वी कॉल दैट वीए, वी कॉल इट वीए, विच इज़ अर्ली वोल्टेज. ओके. तो ये आपके लिए कल का होमवर्क ये रहेगा, एक होमवर्क. तो ये हुआ कि आपको आई सी बी सी कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना है फॉर पी एन पी ट्रांजिस्टर. दूसरा होमवर्क ये रहेगा कि यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज अर्ली वोल्टेज इन केस ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स. ओके. ये हुआ आपका दूसरा होमवर्क. सो ये हमने प्लॉट कर लिया. सेकंड थिंग आई हैव टू प्लॉट इज, फर्स्ट पार्ट था आई सी बी सी ई. ओके. सेकंड इज आई बी वी बी ई, और आल्सो कॉल्ड एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक. IB versus VBE curve. उसके लिए क्या होगा, सेम, वी हैव दी PNP transistors, we have the VCC, we have the ground reference dislocation, and then we have a biasing voltage which is VBB, generally around 0.7 or 0.72. ठीक है. अब हमें इसे प्लॉट करना है IB versus VBE curve. So let me move into that. यहाँ पे क्लियर है दो डीसी कवर मैंने कैसे यूज़ करा. Yes, sir. ओके.
एक एक तरीका और बताता हूँ आपको। अगर किसी को दो डीसी कमांड यूज़ करने में परेशानी आ रही है तो एक चीज़ और कर सकता हूँ, वो कि मैं इसे पहले कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक नोटेशन दूंगा और ये कमेंट हो गया। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ही डीसी कमांड यूज़ करूँगा और वो डीसी कमांड से यूज़ करूँगा मैं वीसीई के लिए। ठीक है, और दूसरी डीसी कमांड यानी जो इस आईबी के लिए मुझे यूज़ करना था उसके लिए मैं एक स्टेप पैरामीटर एक कमांड होता है उसका ही मैं यूज़ करूँगा, स्टेप कमांड का। डॉट स्टेप पैरम in small case, let's suppose I give it name I, starting from, I think मैंने 1 माइक्रो से लिया था, हाँ, 1 माइक्रो to 12 माइक्रो एंड अगेन 1 माइक्रो। ओके, अब ये जो मैंने आई यूज़ करा है मुझे यहाँ पर 1 हटा करके इसे अंडरस्कोर में आई करना पड़ेगा। ठीक है, इसे मैं हटा ही देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं सिर्फ एक डीसी कमांड यूज़ करूँगा और फिर से वही प्लॉट जनरेट कर दिखाऊंगा। तो एक मैंने डीसी कमांड यूज़ करा इस वीसीसी के लिए, इसे वेरी करने के लिए फ्रॉम स्टार्टिंग 0 to 12 वोल्ट, और फिर मैंने एक स्टेप पैरामीटर कमांड यूज़ करा जिसमें मैंने इस आई को पैरामीटराइज करा है, इस करंट सोर्स की वैल्यू को पैरामीटराइज करा है विद अल्फ़ाबेट लेटर आई, और उसे फिर मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज करा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 माइक्रो to 12 माइक्रो इन स्टेप साइज ऑफ 1 माइक्रो। ठीक है, अब मैं इसे प्लॉट करता हूँ, इसे मैं बंद करता हूँ, पर कन्फ्यूजन ना हो, फिर से प्लॉट करता हूँ। ये मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक प्लॉट आ गया, इसके एक्स एक्सिस पे वी सी ई है, और मैं यहाँ से आई सी प्लॉट करता हूँ एंड अगेन यू कैन सी सेम प्लॉट आया। Yes, sure. यस, सो अगेन अगर मुझे देखना है कि कौन से, लेट सपोज मुझे इस ग्रीन प्लॉट के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम करनी है कि इसके लिए आई बी की वैल्यू क्या है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द annotate options and I'll step I'll look for all these steps. Okay, so this is all annotations for the steps, and so, let's suppose I just want one grid or one step to be visible. So let suppose I want this blue to be visible, so I think blue is 8 micro, which is 8 steps. So I'll click on this 8 and place OK. So I will be having that particular graph, else everything will be disappear. So ये मैंने जो हमारा 8 steps था, इसमें क्या होगा कि जो ये आई की वैल्यू है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, देन इट विल गो टू 1, देन 2 एंड 3 देन 4 अप टू 12 माइक्रो। तो जो 8 माइक्रो का जो मुझे ग्राफ चाहिए था वो मैंने यहाँ पर 8 माइक्रो के लिए प्लॉट कर लिया। क्लियर? अगर मुझे और किसी दूसरा प्लॉट करना है तो फिर मैं यहाँ से व्यू पर जाऊँगा, व्यू से मैं सिलेक्ट स्टेप करूँगा और यहाँ से मैं देख सकता हूँ, लेट्स सपोज मुझे 4 माइक्रो एम्पेयर्स का मुझे चाहिए ग्राफ, तो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा तो मुझे वो दिखेगा यहाँ पर। और अगर मुझे सारे ही चाहिए तो मैं सारे सिलेक्ट कर लूँगा। इस तरीके से मैं सारे सेलेक्ट कर लूँगा और सारे प्लॉट कर सकता हूँ मैं। क्लियर? Yes, sure. तो हमने अभी इस प्लॉट के थ्रू दो चीज़ें सीखी। एक तो हमने सीखा डॉट डी सी फॉर टू सोर्सेस, और एक सीखा हमने स्टेप पैरम कमांड को चलाना। हमने दो कमांड सीखा। क्लियर है दोनों कमांड, या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप स्टेप पैरम सर चलाने के लिए। स्टेप रिपीट कर दीजिए स्टेप पर। ओके, सो स्टेप पैरम के लिए क्या करना होता है कि हम जिस भी क्वांटिटी को हम पैरामीटराइज करना चाहते हैं, लाइक आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करा होगा तो इन सेम सेंस आप क्या करते हैं वहाँ पर, लेट सपोज आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, आपको दो सम करना है किसी दो वैल्यू का, तो आप दो वेरिएबल बनाते हैं, a इक्वल्स टू समथिंग एंड b इक्वल्स टू समथिंग, एंड देन यू टेक अनदर वेरिएबल वेयर यू स्टोर द समेशन ऑफ दोज टू थिंग्स, यू रोट a प्लस b विच इज स्टोर इन c। तो समथिंग लाइक दैट कि मुझे आई की वैल्यू लिखनी है, बट मैं आई की वैल्यू को
लाइक लूप में जैसे करते हैं हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वैसे ही यहाँ पे पैरामीटराइज कर रहे हैं कि हम आई की वैल्यू को वेरी करना चाहते हैं, बट बार बार हम आई की वैल्यू को अलग अलग सर्किट बनाना पड़ेगा मुझे, अगर इस तरीके से मैं हर वैल्यू के लिए अलग अलग सर्किट बनाऊँ तो मुझे इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट पैरामीटराइज आई यूजिंग दिस पैरेंथेसिस। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें कि जिस भी लेटर के थ्रू हम पैरामीटराइज करें उसे पैरेंथेसिस में ब्लॉक करना पड़ता है। यहाँ पे हम आई की वैल्यू रखें, लेट सपोज मैं इसे एक्स से पैरामीटराइज कर दूँ, तो मुझे यहाँ पर डॉट स्टेप पैरम एक्स रखना होगा यहाँ पर, तब भी ये काम करेगा। तो ये क्या कर रहा है कि ये आई बी जो करंट सोर्स है इसको वैल्यू दे रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 माइक्रो एम्स टू 12 माइक्रो एम्स इन ए स्टेप साइज ऑफ 1 माइक्रो एम्स। क्लियर? Yes, sir. ओके, सो दिस इज द स्टेप पैरामीटर कमांड एंड अगेन डॉट डी सी हम एक साथ तीन सोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट क्लिक करके भी थर्ड सोर्स, फर्स्ट सोर्स एंड सेकंड सोर्स, एक साथ हम तीन सोर्स के लिए डॉट डी सी कमांड यूज़ कर सकते हैं। दो चीज़ें हमने सीखी इस प्लॉट से। अब नेक्स्ट प्लॉट हम करने जा रहे हैं आई बी वी बी ई, और वी कैन से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। सो लेट मी कॉपी दिस, I'll copy this into my new plot, and then I'll remove this, get a vertex source, let me keep it 0.7, else is okay. Let me remove this, and I don't need to vary this. I had to vary VBP this time because I'm going to plot IBVBE. So I let me call it VBE actually. 0 to let me take to VCC and in the step size of 0.1. Let me call it VBE, and this is VCE. You can call it VCE or VCC. Both is same because emitter is at zero potential in this case. So let me plot IB in this case. You can see this is the IB, और एक्सपोनेंशियल रिलेशन देखना है तो आप इसे लॉगरिथमिक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। So this is IB versus VBE graph. Clear? Base current versus the biasing voltage applied at this base side, or basically base emitter. So this is the input characteristic or also called as IB VBE characteristic. इसलिए फिर से मैं नॉर्मल स्केल में कर देता हूँ। सो दिस इज IB VBE characteristic. अब मैं देखता हूँ कि VCE को वेरी करने से IB में फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हमने जो इक्वेशन पढ़ा था IC का, हमने क्या पढ़ा था कि IC का जो एक्सप्रेशन होता है IC इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल VBE ओवर VT, राइट। और अगर मैं इसे IB लिखूँ यहाँ से, तो हमने पढ़ा था कि बीटा इज इक्वल्स टू IC ओवर IB, तो यहाँ से मैं IB का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। सो IB इज इक्वल्स टू दिस IS एक्सपोनेंशियल VBE over VT over beta. So this is the expression for beta, है ना। and if we are considering only first order effects, second order में VC का इफेक्ट आता है, और इस एक्सप्रेशन में कुछ VC के टर्म भी आते हैं जो हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे होते हैं फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट में, जब हम नॉर्मल कंसिडरेशन कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपने इक्वेशन में अगर मैं VC को वैरी करूँ, तो क्या VC को वैरी करने से IB पर फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? जल्दी बताइए। VCE को वैरी करने से IB पर फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए सर। क्यों पड़ना चाहिए? सर क्योंकि यही तो बाइसिंग वोल्टेज है। बट अगर आप IB के एक्सप्रेशन को देखिए तो वी हैव द सैचुरेशन करंट quantity, we have the exponential VBE involved, and thermal voltage is involved, and beta is involved, which is current gain. Where is VCE involved in this expression? यस सर, So वी भी सही होगा, ठीक है है। ना, so what we are expecting के
the graph or the plot should not be get affected by the variation of the VCE. So let me verify that. अब यहाँ पर मैं VCE को वेरी कर देता हूँ, तो फिर से मैं एक और कमांड चला लेता हूँ, 0, लेट सपोज मैं बहुत थोड़ा सा वेरी करता हूँ VCE को 0.9 से 1.2 तक इन रेंज ऑफ 0.1। ठीक है, अब मैं देखता हूँ फर्क पड़ रहा है। हम्म, Yes, कितना sir. कितना कम फर्क पड़ रहा है, ऑलमोस्ट सेम है ना। मैंने कहा कि जब हम फर्स्ट ऑर्डर कंसिडरेशन कर रहे होते हैं तो वी डोंट बॉदर फॉर कितना वेरी कर रहा है VCE। सो आप देख सकते हैं कि VCE कितना कम वेरी करता है। बट अगर हम बहुत कम रेंज में काम करना चाहेंगे, अगर हम सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट को करते हुए हम अपने डिज़ाइन को कर रहे हैं एम्पलीफायर के लिए, देन वी हैव टू लुक फॉर द वेरिएशन ऑफ द VCE। बट फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट में हम VCE को इग्नोर करते हैं, VCE के वेरिएशन को, और यू कैन सी कि कितना कम वेरिएशन आ रहा है IB में विद रिस्पेक्ट टू द VCE। मैं अगर लॉग स्क्रिप्ट में भी कर दूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगेगा बिल्कुल दोनों ही ओवरलैप कर रहे हैं सारे प्लॉट्स। बहुत जूम करने में आपको दिखेगा थोड़ा सा वेरिएशन, मे बी पॉइंट्स माइक्रोइंस में वेरिएशन होगा, है ना। लेट मी रिमूव दिस स्क्रिप्ट। मैं आपको दिखाता हूँ कर्सर से कितना वेरी कर रही है। यहाँ इस वैल्यू को चेक करिएगा, राइट नाउ इट इज 70.93 मिली एम्पियर्स। फिर मैं दूसरे प्लॉट पे जाता हूँ शिफ्ट डाउन करके, ऑलमोस्ट सेम रह रहा है, देखिए। है ना, कितना कम वेरिएशन हो रहा है। टू स्टार्टिंग फ्रॉम 291, 293, 295, 298 एंड देन समथिंग लाइक दैट, इतना कम वेरिएशन। अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, शिफ्ट एंड अप डाउन कर सर आप करिए और फिर आप वेरी करके देख सकते हो अगर आप कोई प्लॉट कर रहा हो तो। या फिर आप जो मैंने तरीका बताया था, notes and annotation, and annotate all the steps and you can see the variations for what values of VCE which graph is there. Clear? Yes, sir. So this is IB VBE graph। तो हमने दो ग्राफ बनाया, एक IC VCE और IB VBE। सो IC VCE कुछ हमें ऐसा दिखा फॉर डिफरेंट डिफरेंट IB, है ना, different different IB is there to IB1, and this is IC versus VCE। फिर हमने IB वर्सेस VBE प्लॉट करा, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, IB VBE, which is something like this, है ना, फॉर डिफरेंट डिफरेंट VCE। बिल्कुल बहुत कम वेरिएशन था। सो आप इसे बेसिकली बहुत एक साथ ही मान लो इसको, प्लॉट को बिल्कुल ऐसा गया। ठीक है, मैं एक ही दिखाता हूँ। सो दिस इज इनपुट करेक्टरिस्टिक एंड दैट वाज आउटपुट करेक्टरिस्टिक। सो दो चीज़ हमारे में क्लियर हो गई। इसके बाद हमारा जो तीसरा होमवर्क था इट वाज कॉमन बेस एम्पलीफायर बायसिंग। ये किसने ट्राई करा, ये मैंने अटैच भी करा था यहाँ पे प्लॉट PDF में। ट्राई करा किसी ने? एक ने ट्राई करा, क्या आया था, गेन आपका आया था?
सो ट्रांजिएंट एनालिसिस करने पे कैपेसिटर के बाद जो वेवफॉर्म आई थी वो स्मूथ आई थी एंड एसी पे एक स्लोप आया था। ओके, और किसी ने? और किसी ने ट्राई नहीं करा? कल मैंने बताया था यहाँ पर वीबी की वैल्यू क्या होगी। इस नोड पे मैं लगाऊंगा वोल्टेज डिवाइडर। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, सो R3 ओवर R1 प्लस R3 टाइम्स VCC। दिस इज द voltage at this node, and for this node मैंने बताया था VE which is IE times R4। ठीक है। at the same time for the biasing you have to ensure कि VBE should be greater than 0.7 volt, और इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि R3 over R1 plus R3 into VCC minus IE times R4 should be greater than 0.7 volt। So this should be ensured अगर आप जब बाइसिंग करेंगे इस ट्रांजिस्टर की। और अगेन ये जो पार्ट है VBE इट शुड बी इन फॉरवर्ड बायस, तो मैंने ऐसा लिखा। फिर ये जो रीजन है इट शुड बी इन रिवर्स बायस। ये कनेक्शन बताया था हमने कि अगर हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करना चाह रहे हैं, और जनरली जो यूज़ भी करते हैं हम ऐसा एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन, तो जो बेस एमिटर जंक्शन है इट शुड बी इन फॉरवर्ड बायस मोड ऑफ ऑपरेशन, एंड the collector base junction should be in reverse bias. So रिवर्स बायस। yes, so VC should be greater than VB plus zero point 0.7, sorry, less than. VC be greater than zero point 0.7, or you can say VBC less than zero point 0.7। ठीक है। और ये जो कैपेसिटर्स है मैंने बताया था, दे आर कॉल्ड एज कपलिंग कैपेसिटर्स। Coupling capacitors, this capacitor is coupled with the input signal, and then for output signal we have this capacitors, and then we have this capacitors for this ground. And sometimes these capacitors are used to avoid the impact of noise in the circuits, and the another में पढ़ा भी हो। आपको बता सकते हैं कैपेसिटर का मेन यूज क्या होता है किसी भी सर्किट में? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर्स? सो फिल्टरिंग। फिल्टरिंग व्हाट? सो फिल्टरिंग द रिपल फैक्टर। No, that is not the generalized answer. Some circuits it's okay, some it not. Simply you should say it is used to block the DC, है ना? Capacitor blocks the DC signal, just AC को pass करेगा, so I'll be able to get my output signal filtered, DC on the AC will be appear at the output side, so that will be our output signal which is going to be appear at the actuator side, and then सो yeah. कल जो आपने बुक प्रिस्क्राइब करी थी उसमें लिख रहा था कि ट्रांजिस्टर हमेशा को डीसी बायस करा जाता है, तो यहाँ पे अगर ये डीसी को ब्लॉक कर देगा, एसी को जाने देगा, तो सर्किट काम कैसे करता है? फिर बुक में गलत लिख रहा था। बुक पे गलत नहीं लिखा है और ना ये गलत है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये डीसी बायस जो करना है हमें, तो बस यहाँ पे मैं डीसी को नहीं अपेयर करना चाहता हूँ अपने आउटपुट नोड पे। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए जब मैं डीसी एनालिसिस करूँगा या एसी एनालिसिस करूँगा या कोई भी एनालिसिस करूँगा, तो बस सिग्नल मुझे चाहिए यहाँ पर। सिग्नल क्या होता है, बहुत ही मिली वोल्ट या मिली एम्पेयर के रीजन में होता है, अगर वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में है तो बहुत ज़्यादा वोल्ट्स के एम्पेयर रेंज में नहीं होता है। तो हमें सिर्फ एसी सिग्नल चाहिए आउटपुट पे। बा, हमें बाइसिंग करने के लिए इस नोट को देखना है, इस नोट को देखना है और इस नोट को देखना है, नॉट दिस एंड नॉट दिस।
है ना, इस नोड को देखना है हमें। तो इस नोड के लिए हमें क्या इंश्योर करना है कि डीसी बाइसिंग में एक ऐसा वोल्टेज यहाँ पर अपियर हो और यहाँ पर अपियर हो कि इन दोनों का जो VBE है इट शुड बी ग्रेटर देन 0.7। सो वो उसे कहते हैं डीसी बाइसिंग। अब वो यहाँ पर मैंने वोल्टेज सोर्स तो लगाया नहीं है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो बाइसिंग कहाँ से अपियर होगी यहाँ पर। सो उसी के लिए ये फिर रेजिस्टिव नेटवर्क लगाया गया है। ये जो रेजिस्टिव नेटवर्क है ना, व्हाट इट डज इट इज़ लाइक दिस। और मे भी थोड़ा थ्योरी गैप है आप लोगों का यहाँ पर, कि अगर यहाँ पर मेरा एक वोल्टेज सप्लाई है प्लस VCC, और यहाँ पर एक रजिस्टर है R1, ये R2, और यहाँ पर कुछ है ग्राउंड। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आता है ना, डेट इज़ इक्वल्स टू R2, जब सिंपल KVL से आएगा ये R1 प्लस R2 इंटू VCC, ये वोल्टेज अप्लाई होता है। तो जब इसका हम थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट, दिस पार्ट कैन बी मॉडल लाइक दिस। अगर किसी ने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा हो तो, कि इस तरीके से हम एक RTH आता है इसका और एक VTH आता है। तो ये VTH और ये RTH, और इट विल गो टू द बेस ऑफ द जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये कुछ फिर ऐसा हो जाएगा, है ना। तो अब दिख रहा है ये बाइसिंग हो गई, और यहाँ पे हमारा इनपुट सिग्नल है, यहाँ से कैपेसिटर के थ्रू मेरा कुछ इनपुट सिग्नल आ रहा होता है। अगर मैं कॉमन एमिटर बना रहा हूँ तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉमन बेस बना रहे हैं, तो इनपुट सिग्नल है नहीं हमारा बेस के साइड में। तो जस्ट एक नॉइज़ को हटाने के लिए हमने इस कैपेसिटर लगा दिया है। एक VTH है हमारा यहाँ पर, जो इस रजिस्टर नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर बन के आ रहा है ऐसा। तो हमने मतलब इस पूरे सर्किल को हम ऐसा मॉडल कर सकते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट में एक VTH है हमारा और एक RTH है। RTH क्या है, ये है RTH, R2 ओवर R1 प्लस R2। या समटाइम RTH ये होता है, समटाइम ये ऐसे ही होता है, R3 प्लस और कोई है ये R1, तो R3 पैरेलल R1, दिस इज आर RTH। तो इसके ड्रॉप से और इसके ड्रॉप से यहाँ पर एक वोल्टेज अपियर होगा, एंड दैट वोल्टेज विल बी सेट अकॉर्डिंगली कि हमारा ये बिल्कुल फॉरवर्ड बायस पे रहे ये ट्रांजिस्टर, और ये वाला जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस में रहे। और ये VC कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है इस वोल्टेज सोर्स से। यहाँ पर हम सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे इस VCC पर। एक वोल्टेज सोर्स होगा, लेट सपोज 12 वोल्ट का होगा, प्लस 12 वोल्ट। और इस कुछ इसके लिए गया, यहाँ यूज़ हुआ VB को अपेयर कराने के लिए, कुछ यहाँ यूज़ होगा VC, कुछ लेट सपोज IC का यहाँ पर फ्लो होगा। सो VC विल बी इक्वल्स टू VCC माइनस IC RC, RC, और इन दिस केस इट इज़ R2। सो ये आएगा VC। तो ये DC बाइसिंग VC की हो गई, यहाँ पर VB भी हो गया, और V तो हम ग्राउंड की पोटेंशियल से ले रहे हैं यहाँ पर अपने केस में। क्लियर Yes, sir. है ना। सो ये बहुत ही थियोरेटिकल अप्रोच है DC बाइसिंग करने का एक्चुअली। एंड एप्लीकेशन जब हम ट्रांजिस्टर को फैब्रिकेट करा रहे होते हैं तो ऐसे बाइसिंग नहीं करते, उसके लिए अलग टेक्निक होती है। बट दैट इज़ फॉर द मोस्ट एडवांस स्टेज, उससे पहले बहुत थ्योरी पढ़नी पड़ती है और चीज़ों की नॉलेज भी होनी चाहिए। सो फॉर द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इट इज़ वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड कि डीसी बाइसिंग कैसे करते हैं हम। डीसी बाइसिंग के लिए हमने एक रेजिस्टेंस नेटवर्क लगाया फॉर द बेस साइड। आउटपुट साइड पे हमारा कलेक्टर करंट आएगा, ड्रॉप आएगा, VC वेल बायस हो जाएगा हमारा, V आउट हमारा AC सिग्नल देगा, और फिर हमारा ये इनपुट सिग्नल हम यहाँ दिया है इन द केस ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। ओके ओके, सो लेट मी गो इनटू दैट। आई थिंक मैंने बना रखा होगा, या दिस इज कॉमन बेस बायसिंग फॉर एम्पलीफायर। अब अब सवाल ये आएगा कि हमें रजिस्टर्स की वैल्यू कैसे चूज़ करनी है। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी प्रिसाइज इन दिस केस, बिकॉज उसके लिए फिर अगेन आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। तो उस वो डीप जाने के लिए मैं आपको जब कॉमन एमीटर एम्पलीफायर पढ़ाऊँगा तब उसमें ज़्यादा डीप पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो ज़्यादा एप्लीकेशन में जनरल यूज़ में आता है। तो कॉमन बेस में हम बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे बाइसिंग की। तो सबसे पहले मुझे VB को सेट करना है। तो VB के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं दिखाता हूँ आपको एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या था, R3 और R1 प्लस R3 इंटू VCC। और आपने देखा कि मुझे यहाँ पर कितनी वैल्यू चाहिए, इतना चाहिए कि बस ये फॉरवर्ड बायस में रहे। सो आई विल ट्राई कि ये ज़्यादा हो। सो लेट मी कीप इट 50K, और ये थोड़ा कम हो, क्योंकि ये
न्यूमिनेटर में आ रहा है एक्सप्रेशन में 0.7 के राउंड रखना है मुझे, तो लेट मी टेक इट 1 के। ये रजिस्टर ज़्यादा होगा, और इस R2 और इस R4 के कॉम्बिनेशन से हमारा गेन डिसाइड होगा। सो लेट मी कीप इट 100 के, एंड देन 10 के और सिंपली 1 के, और इसे मैं 10 के कर देता हूँ। कैपेसिटर्स की वैल्यू सिंपली 1 ले लीजिए, 1 और 10 भी ले सकते हैं। ऑल सेट। इनपुट सिग्नल देना है, इनपुट सिग्नल के लिए मैं यहाँ आ जाऊँगा, साइन इनपुट देता हूँ with a 0 DC offset. Let's take 1 millivolt of amplitude and 1 kilohertz of frequency, and VCC I need to connect. So let me take a VCC. So 12 volt VCC is there, and चलिए मैं पहले AC एनालिसिस कर लेता हूँ. So let me give the amplitude AC1 here, and then I'll write the command dot AC decade type starting from 10 in a step of 10 up to 1 gigahertz of frequency. Okay, okay, mistake is there. Then this one is there. We have to plot the way out. Plot is not correct. सर्किट प्रॉपरली बायस नहीं हुआ है, तो आप सर्किट की बायसिंग देखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं डॉट ओपी एनालिसिस करूँगा, जिससे डॉट डीसी एनालिसिस करते हैं कि कहाँ किस नोट पे कौन सी वैल्यू आ रही है. सो लेट मी डू डॉट ओपी फर्स्ट. ओके, यू कैन सी कि ये प्रॉपरली बायस नहीं है, वीबीई सही से नहीं मिल रहा है हमें. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे कम करना पड़ेगा. इसे मैं कम करता हूँ, लेट्स सपोज मैं करता हूँ. मैं इस ड्रॉप को बढ़ाता हूँ, और लेट मी सी कुछ. अगेन मैं डॉट ट्रांस चेक करता हूँ कि सिग्नल मेरे एग्जैक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है. सो वी आउट हमें एग्जैक्ट साइनसोइडल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमारे सर्किट में कुछ इशू है. इनपुट सिग्नल देख लेता हूँ, इनपुट सिग्नल इज करेक्ट. एम्पलीफिकेशन नहीं मिल रहा, यू कैन सी के इनपुट सिग्नल 100 माइक्रो वोल्ट एम्पलीट्यूड का है, और आउटपुट सिग्नल हमें बिल्कुल भी एम्पलीफाइंग होकर नहीं मिल रहा है, मतलब कि एम्पलीफिकेशन
इस सर्किट में नहीं हो पा रहा है। सो कुछ परेशानी है इस सर्किट में। ट्राई टू फाइंड आउट। यस, 12 will disappearing. एंड एनालॉग सर्किट इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग ओनली, कि कभी कभी ऐसा हुआ कि आप बिल्कुल स्टक हो जाएंगे। आपने साइट डिज़ाइन कर ली, देन यू हैव टू डू द इटरेशन कि या व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन द सर्किट। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर 12 वोल्ट है वीसीसी पर कलेक्टर पर, और आउटपुट नोड पे वीसी पर भी हमें 12 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब इस 10 किलो ओम्स में कोई भी करंट ड्राइव नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या मैं निकाल पा रहा हूँ? इसका मतलब है कि कोई भी करंट जब कलेक्टर साइड पे फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब कि ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ है ना। इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर इज़ नॉट प्रॉपर्ली बाइस्ड, और प्रॉपर्ली बाइस्ड नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये फॉरवर्ड बाइस में नहीं है, या फिर ये रिवर्स बाइस में नहीं है, दोनों में से कोई एक इशू आ रहा है। अब बेसिकली दोनों ही रिवर्स बायस में, क्योंकि अगर दोनों फॉरवर्ड बायस में होता तो वो होता है सैचुरेशन रीजन में। उस केस में ट्रांजिस्टर ऑन होता है और सैचुरेशन करंट फ्लो करता है। बट इन आर केस व्हाट इज़ हैपनिंग कि इस R2 के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके क्रॉस में कोई ड्रॉप नहीं आ रहा है, तो मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, यानी कि दोनों ही जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में है। दैट मीन्स आई हैव टू मैनिपुलेट दिस पर्टिकुलर जंक्शंस टू कीप इट इन फॉरवर्ड बायस रीजन, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू डिसाइड कि फिर किस तरीके से हमारा सर्किट बिहेव करेगा। ये आपके पास कैलकुलेशन है, ठीक है, एंड यू हैव टू ट्विक दिस R3 एंड दिस R1 टू एडजस्ट दिस VB, ठीक है। अब किसे ज़्यादा करना है, किसे कम करना है। तो अभी हमें क्या मिल रहा है ना, राइट नाउ वी आर गेटिंग 118 मिली वोल्ट्स, यानी हमें कम मिल रहा है, हमें बढ़ाना है। जनरली हमें 0.7 वोल्ट की तरफ लेकर जाना है, तो मैं R3 को बढ़ा कर देखूंगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सो लेट मी इंक्रीज this and let me check। बढ़ा, पहले ये 100 एंड समथिंग था, अभी ये 235 हो गया। लेट मी इंक्रीज दिस मोर, let me take this 10 kilo ohms, so it's more, so इसे और कम कर लेता हूँ, 7 किलो ओम रख लेता हूँ। अभी ये जनरली इट इज़, अभी हमें 781 मिली वोल्ट्स मिल रहा है, राइट। तो इसे मैं और कम करना चाहूँगा, तो इसके लिए मैं इस रजिस्टर की वैल्यू को और कम करूँगा। सो लेट मी टेक इट टू 6.5 किलो ohms, ठीक है। अब ये जनरली फॉरवर्ड बायस में हो गया है हमारे साथ। ये 729 मिली वोल्ट है, ये 130 मिली वोल्ट है, तो 0.6 वोल्ट के आसपास ड्रॉप मिल रहा है, जो सिलिकन को जनरली फॉरवर्ड बायस में कर देता है। और आप देख सकते हैं कि वी सी इज मोर दैन वी बी, सो ये रिवर्स बायस में हो गया ये जंक्शन, और ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो गया। और आप अभी यहाँ पर अब देख पा रहे हो कि हमें कलेक्टर साइड पे 12 वोल्ट मिल रहा है, आई मीन सप्लाई साइड पे, और यहाँ पर मुझे 10.7 वोल्ट मिल रहा है। डैट मीन्स कि इस रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, और कितना फ्लो कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप कर्सर लेकर आएँ और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि वी आर हैविंग 129.7 माइक्रो एम्पेयर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर, और यू कैन से 0.129 मिली, यहाँ पे दिखेगा आपको, इस यहाँ देखिएगा, ठीक है। और इस तरीके से देख सकते हैं आपकी कितना फ्लो कर रहा है R2 में। सो देख पा रहे हैं कि अभी ये 0.129 मिली एम्पियर्स करंट फ्लो कर रहा है। तो अब ये सर्किट सही बिहेव करना चाहिए। तो लेट मी डू AC एनालिसिस एंड लेट्स सी, एंड यू कैन सी, and this is called debugging of the circuit. I got wrong iterations, I got wrong guess, and then I just followed the equations that I wrote here in this theory, and then followed by that I got my results correct. So clear है, we are getting a gain of 33.89 dB। कोई डाउट? काफ़ी लोग लीव भी कर चुके हैं, कुछ डाउट है तो पूछिए। हेलो।
सर ऐसे सिमुलेशंस को रन करना, रेसिस्टर, कैपेसिटर और बाकी चीज़ों की वैल्यू, मैग्नीट्यूड डिसाइड करना, इन सब के लिए काफ़ी थ्योरी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के बाद ही हो पाता है, या फिर ऐसे भी करा जा सकता है it शुरू co- में ही? it comes with experience. Theory is always going to help you. अगर आपको theory नहीं पता है, you are always going to stuck in between your design, because design is what, when you know something in back of your mind, then only you are going to put something in the design now. How you are going to decide the values of R, C, and then how you are going to bias the transistors. You must be knowing all the equations involved in the circuits, whatever the kind of circuit you are designing. So some kind of a little bit of theory along with a good simulation technique, that is going to help you a lot. And that is what actually I'm trying to help you or let you know in this particular circuit. यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा, आपने AC एनालिसिस करना सीखा, आपने DC एनालिसिस सीखी थी इससे पहले सर्किट में, फिर आपने यहाँ पर ट्रांजिएंट भी सीखेंगे, देन यू ऑल्सो गेट टू नो कि अगर आप सर्किट आपका सही बिहेव नहीं कर रहा है, सो हाउ आर गोइंग टू डिबग इट. इनिशियली मुझे AC एनालिसिस जब मैंने करा, फ्रिक्वेंसी एनालिसिस, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आई शुड बी गेटिंग अ गुड गेन, बट आई वाज नॉट गेटिंग. So what I did, I tried to debug the circuit. I tried to find out what is going wrong in the circuit, and I found that no current is being flow in the collector side. That means my transistor is off. So I have to bias my transistor properly. Then I look for all the voltages VB, VC, and VE, and I found that my uh, uh, collector base junction is correct, but base emitter junction is not properly biased. So I have to increase the uh, voltage at the base side. So what I did is I tried to look for the equation involved for this base voltage, and I found that this is the equation involved, which is R3 over R1 plus R3 into VCC, and I found that I could increase R3 to increase VCC, है ना. So what I did is I tried to increase the R3, and I am well successful to get a well bias voltage of 0.729 volt, and then I got the uh, expected output in my frequency analysis plot. Fine. यस सर। एंड अगेन, अब हम यहाँ पर पहुँच गए, तो आपके लिए फिर मैं एक होमवर्क छोड़ूंगा कल के लिए. दो होमवर्क अभी हो चुका है. एक था पीएनपी ट्रांजिस्टर की आईवी कैरेक्टरिस्टिक. दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज अर्ली वोल्टेज, यू हैव टू फाइंड आउट. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज नाउ कि अब मैंने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर लिया. अब यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में कुछ कुछ टर्म इन्वॉल्व होते हैं. जैसे एक होता है बैंड विथ, ठीक है, एक होता है बैंड विथ, फिर एक होता है -3 dB. अगेन अगर आप ये देखना पा रहे कि मैं कैसे लिख पा रहा हूँ ये, तो ये जस्ट यू हैव टू गो एट दिस लोकेशन, टी लिखें, या फिर टी शॉर्टकट अगर आपके लैपटॉप में काम करता है तो उसे आप क्लिक करें, देन यू विल बी एबल टू राइट इन दिस प्लॉट. फिर -3 dB, फिर -3 dB बैंड विथ, फिर एक होगा हायर कट ऑफ, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और एक होता है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. So you have to you need to try to find out these four terms. आप इसको खुद से थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. और एक चीज़ और आप देख सकते हैं, यूजीबी, ठीक है. ये 5 टर्म. फेज मार्जिन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. अगर आप चाहें तो फेज मार्जिन भी देख सकते हैं. पहले फिलहाल के लिए मैं फेज मार्जिन को हटा ही देता हूँ अभी. आप इन 4 चीज़ों को देखें, ठीक है. bandwidth, -3 dB bandwidth, higher cutoff frequency, lower cutoff frequency, and then unity gain bandwidth. इन 4 चीज़ों की डेफिनेशन आपको पढ़ के आनी है, और ये सर्च करिएगा नेट पर, और फिर कोशिश करिएगा जानने की कि इस फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में. मैं आपको दिखा देता हूँ. ये जो है आपका गेन है, दिस इज दी गेन, जहाँ पर सबसे हमें हाईएस्ट गेन मिल रहा है. वी denote that are gain in the circuit. बट ये गेन तो हमेशा नहीं मिल रहा है. अगर हम किसी भी अपने सप्लायर को हम अपना ओपैम देंगे और उसे बताएंगे कि हमें कितना गेन का हमने ये ओपैम बनाया है, तो ही विल आस्क कि हम किस रेंज की फ्रिक्वेंसी में यूज़ कर सकते हैं. जब जैसा हमने शुरू में पूछा पूछा था कि बीजेटी का यूज़ कहाँ पर है, तो बीजेटी हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज़ होता है. तो हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन का रेंज क्या होगा कि जहाँ पर मुझे प्रॉपर गेन मिले. अब हमेशा तो ये गेन नहीं मिल रहा है, कहीं पर ये गेन कम मिल रहा है इस तरफ.
और बीच में गेन ज़्यादा मिल रहा है हमें किसी रेंज में, तो वो रेंज हम कैसे डिसाइड करते हैं? दैट रेंज इज डिसाइडेड बाई कि सबसे पहले हाईएस्ट गेन कहाँ मिल रहा है हमें, मिल रहा है 33.89 dB। इसका मतलब है कि मुझे इसके -3 dB पे जाना होगा, -3 dB राइट, -3 dB लेफ्ट। तो मैं जब राइट पे जाऊँगा तो इट इज़ 30.89, सो विच इज़ कॉल्ड एज हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। और जब मैं लेफ्ट में जाऊँगा -3 dB विच इज़ 20 सॉरी या अगेन 30.89 dB। सो ये मुझे देगा लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सो ये लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है और ये हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, और जब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा एफ एच माइनस एफ एल, और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, so what I'll get is the bandwidth, that is called as bandwidth. Let me show you. 30.89, something like this. So ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस, दिस इज माय बैंडविड्थ 9.94 मेगाहर्ट्ज। मतलब 9.94 मेगाहर्ट्ज की रेंज है जहाँ पर मुझे ये मिल पा रहे हैं गेन, अप्रॉक्सीमेटली 39 dB का। ठीक है। और फिर यू हैव दी ऑप्शंस इन एलटी स्पाइस के, आप इसे लीनियर मोड में भी देख सकते हैं कि ये कितना वोल्ट बाई वोल्ट है, अगर वोल्ट बाई वोल्ट भी देखना है तो। सो दिस इज इन वोल्ट बाई वोल्ट विच इज़ 49 वोल्ट बाई वोल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, लेट मी ब्रिंग दिस इनटू डेसिबल ओनली। एक चीज़ और आप पता कर पाएंगे, व्हाट इज़ द रिलेशन इन डीबी एंड वोल्ट बाई वोल्ट। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, बेसिकली ये कुछ 2 3 ही क्वेश्चन है। तो ये कुछ टर्म्स यहाँ पर हो गए और 2 क्वेश्चन हमने पहले दिया था, ये आप प्लॉट कर, आई मीन इसके बारे में पढ़ के आएंगे। और डीबी वोल्ट बाई वोल्ट का रिलेशन होता है, ये 4 5 चीज़ें, 2 चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी। इसकी ट्रांजिएंट एनालिसिस करके देख सकते हैं आप। अब देखिए आपको वी आउट सही मिल रहा होगा। लेट मी प्लॉट दिस वी इन। अब देखिए पहले वी आउट कम मिल रहा था, वी इन ज़्यादा मिल रहा था। अब जब सर्किट हमने सही से बाइस कर दिया तो हमें एम्पलीफिकेशन मिल रहा है ना। वी इन इज समथिंग लाइक, इसे मैं एक नया प्लॉट में देता हूँ। तो वी इन जनरली 100 माइक्रोवोल्ट के एम्पलीट्यूड पर है, और यहाँ पर हमारा वी आउट जो है हमारा 28 मिली वोल्ट के एम्पली रेंज में चला गया, विच इज़ जनरली वेरी हाई, सो यू कैन वेरीफाई। और कॉमन बेस के केस में हमें फेज इन्वर्जन भी नहीं मिलता है, मतलब हमें इन्वर्ट आउटपुट नहीं मिलता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पर दिखाऊँ, सेम फेज का मिल रहा है ना, ये सेम फेज बिल्कुल सही से दिख नहीं रही है। अगर मैं जूम करूँ तो जहाँ पर पीक है वहीं पर ये पीक मिल रहा है, थोड़ा सा डिले के साथ। अब दूसरी चीज़ आप जो प्लॉट कर सकते हैं इसमें, वो प्लॉट कर सकते हैं आप करेंट्स। आप प्लॉट कर सकते हैं इनपुट करंट जो कि था हमारा एमीटर साइड पे, विच इज़ आई ई। और दूसरी चीज़ प्लॉट कर सकते हैं आप आई सी, ये हमारा करंट से, करंट में इन्वर्जन मिल रहा है। देखिए जहाँ पर पीक मिल रहा है वहाँ पे हमें वैली मिल रही है आउटपुट पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉमन बेस। और इसकी भी स्क्रीनशॉट मैं डाल देता हूँ ग्रुप पर। ओके, और एक मैं इसके डाल दूँगा होमवर्क्स की। So I think I am very much clear what I was trying to convey, and I think if somebody is having any doubt, so please ask in 2 minutes. किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर सेशन क्लोज करते हैं। गालिब कल कौन